ہم لوگ شہر سے نزدیک رہتے تھے، جہاں سے کھیتوں والا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ یہیں ریحان کا گھر تھا۔ گھر سے آگے باغ اور پھر کھیت تھے۔ پہلے یہاں ریحان نہیں رہتا تھا، نوکر اور کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ ریحان تو اب کچھ دنوں سے آ کر رہنے لگا تھا۔ میں نے ریحان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ ہمارے گھر کے پاس ملک صاحب کی زمین اور باغ ہیں، جس میں ان کا بڑا سا پختہ مکان تھا، مگر اس مکان میں وہ کبھی کبھی آتے تھے، کیونکہ ملک صاحب گاؤں میں رہتے تھے، جہاں ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ریحان انہی ملک صاحب کا پہلوٹی کا بیٹا تھا۔ ریحان کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس کو سوتیلی ماں نے پالا تھا، جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ البتہ ریحان کی تیسری سوتیلی ماں اس سے جلتی تھی اور اس کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے ریحان گھر سے باہر رہتا تھا۔ پہلے وہ شہر کے ہاسٹلوں میں رہا۔ جب تعلیم مکمل کر لی تو اس کے والدین نے اس کے حصے کی زمین اور جائیداد اس کے سپرد کر دی۔ اس طرح ریحان مالی لحاظ سے ایک حد تک خود کفیل ہو گیا۔ ریحان کے حصے میں جو زمین، مکان، باغ اور کھیت آئے، یہ وہی تھے جو ہمارے گھر کے نزدیک تھے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ خود بھی آ کر رہنے لگا۔ ریحان اپنے بوڑھے نوکر کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے یہاں اپنے پڑوس میں ریحان کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ البتہ ملک صاحب کو ضرور دیکھا تھا۔ اس دن میں بھی گھر میں اکیلی تھی، صرف میرا چھوٹا بھائی فہد میرے ساتھ تھا۔ کچن میں کوئی کام کر رہی تھی کہ فہد نہ جانے کس وقت گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا پڑوس میں چلا گیا، کیونکہ باغ کا پھاٹک اکثر کھلا رہتا تھا۔ فہد پہلے بھی کنوں اور مالٹے توڑنے کے شوق میں باغ میں گھس جایا کرتا تھا۔ اس وقت نوکر وغیرہ ہوتے جو فہد کو پڑوس کا بچہ سمجھ کر کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن آج نوکر کے بجائے مالک نے اس کو مالٹے کے درخت پر چڑھتے ہوئے پکڑ لیا۔ ہمارا کچن باغ کی دیوار کے ساتھ ہی تھا۔ اچانک مجھے اپنے بھائی کی چیخ سنائی تھی۔ برتن جو میں دھو رہی تھی میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اوپر چھت پر گئی۔ جا کر دیکھا کوئی شخص باغ میں میرے بھائی کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس آدمی کی پیٹھ میری جانب تھی۔ میں سمجھی کہ ملک صاحب کا کوئی رشتہ دار یا مہمان ہے۔ میں نے چھت پر سے اونچی آواز میں کہا، بابا جی، میرا بھائی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی بڈھا ہوگا۔ وہ بغیر میری طرف منہ کیے بولا، ذرا نیچے آ کر اپنے بھائی کی چوری تو دیکھو، کتنے پھل اس نے اجاڑ ڈالے ہیں۔ گھر میں کوئی نہ تھا، اس لیے مجھے ہی فہد کو چھڑانے جانا پڑا۔ جب میں باغ کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا سامنے ایک اجلا اجلا خوبصورت نوجوان کھڑا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی فہد کو چھوڑ دیا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ میں اس کو لے کر واپس جانے لگی تو ریحان نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پہلی مرتبہ آئی ہیں، ذرا بیٹھیے تو صحیح، آئیے کمرے میں آ جائیے۔ میں فہد کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے مکان میں چلی گئی۔ اس کا ڈرائنگ روم بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بہت ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ بولا کہ آپ ڈر رہی ہیں کیا؟ میں نے کہا، جی نہیں، میں ڈر تو نہیں رہی۔ پھر آپ کی آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ تبھی اس کا نوکر آ گیا۔ ریحان نے اس کو کافی لانے کو کہا۔ وہ ٹرالی میں پھل، بسکٹ، مٹھائی اور کافی لے آیا۔ میں اپنی اتنی خاطر مدارت دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھ پر خفا ہوگا، کیونکہ میرے بھائی نے اس کے باغ میں چوری کی تھی اور میں چور کی بہن تھی۔ مگر ایسا نہیں تھا، بلکہ میری بڑی عزت افزائی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کافی بنا کر دی۔ کافی پی لینے کے بعد اس نے کہا، آپ جا سکتی ہیں۔ جب میں اس کے کمرے سے اٹھ کر جانے لگی تو میرا پاؤں لڑکھڑا گیا اور میں گرنے لگی، تو اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا اور بولا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بہت گھبرا رہی ہیں۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی، میں واقعی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ رہ رہ کر دل گھبراتا تھا، جی چاہتا تھا ایک بار پھر ریحان نظر آ جائے، اس سے سامنا ہو جائے تو دل کو سکون آئے۔
2-4 दिन गुजरने के बाद रेहान का नौकर एक बड़ी सी टोकरी में बहुत से फल ले आया। ये फल रेहान ने हमारे घर तोहफे के तौर पर भेजे थे। अब्बा जान को नौकर ने फल ला कर दिए। अब्बा जान ने शुक्रिया अदा किया। अगले दिन वो रेहान से मिलने इसके घर गए। इस तरह उन्होंने भी पड़ोसी समझकर रेहान को चाय पर बुलाया। फिर रेहान का हमारे यहाँ आना जाना हो गया। रेहान की और मेरी मुलाकातें मुख्तसर होती थीं, वो भी इस वक्त जब अम्मी कहीं जाती और फ़हद स्कूल गया होता। मैं छत से रेहान के बाग में झांकती तो वो बरामदे में बैठा होता या बाग में घूम फिर रहा होता और मुझे देख लेता तो इशारे से कहता, आ जाओ कॉफ़ी पीते हैं। मैं जाती मगर बस 5-10 मिनट बैठ कर आ जाती। इस तरह हम मोहब्बत करने लगे। जल्द ही मेरे वालिदैन ने महसूस कर लिया कि मुझे रेहान का ध्यान रहता है। वो जब भी हमारे घर आता मैं दौड़कर इसके लिए चाय बनाने लगती। मैं अपने जज्बात और खुशी को छुपाने से कासिर थी। इसके पाँव की चाप पहचान कर ही मैं खिल उठती थी। अम्मी ने अब्बू को सलाह दी थी कि रेहान अच्छा लड़का है, क्यों ना हम अपनी लड़की के लिए इस रिश्ते को हासिल करने की कोशिश करें। मेरे वालिदैन को कोई कोशिश ना करनी पड़ी, क्योंकि मैंने रेहान को बता दिया कि वालिदैन इस रिश्ते पर राज़ी हो जाएंगे। तुम रिश्ता मांगो। वो कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरी आरजू है कि मैं तुमसे शादी करूँ, लेकिन मेरे बुज़ुर्ग ना मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जायदाद की वजह से ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं होती। अगर तुम्हारे वालिदैन इस अमर पर राज़ी हो जाएं कि मेरे बुज़ुर्गों की शमूलियत के बगैर ही तुम्हारी शादी मुझसे कर दें तो फिर ये रिश्ता हो सकता है। मैंने कहा, तुम मेरे वालिदैन से रिश्ता मांग कर तो देखो, तुम खुद मुख्तार हो, मेरे वालिदैन क्यों ना राज़ी होंगे। मेरे कहने से रेहान ने मेरी अम्मी से मेरा रिश्ता मांग लिया। अम्मी ने कहा, गुलनाब के अब्बू से बात करूंगी। अम्मी ने अब्बू से कहा, वो बगैर बुजुर्गों की शमूलियत के मेरा रिश्ता रेहान से तय करने पर राज़ी न होते थे, लेकिन अम्मी जान ने अब्बू से बात मनवा ली। अब्बू ने रेहान को घर बुलाया और तमाम बातें तय हो गईं। रेहान ने अब्बू के सामने ये वादा और इकरार किया कि जब तक मेरे वालिदैन इस शादी को तस्लीम ना कर लें, आपकी लड़की को मैं गांव लेकर ना जाऊंगा और मैं ज़िंदगी भर दूसरी शादी भी ना करूंगा। बस यही 2 बातें अब्बू ने मनवाईं, जो रेहान ने बिला तामुल मान लीं और मेरी शादी अब्बू ने अपने दोस्तों को बुलाकर रेहान से कर दी। रेहान की तरफ से इस शादी में इसके चंद एक दोस्तों के सिवा कोई शामिल न हुआ। एक तरह से ये शादी इसने अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से छुप कर की थी। रेहान के पास रुपए पैसे की कमी न थी। कुछ अरसे तक तो वो मुझे साथ लेकर मरी, एबटाबाद और दूसरे खूबसूरत इलाकों की सैर करता रहा। फिर हम घर आ गए। सुबह अम्मी के घर में रहती थी, क्योंकि गांव से अचानक रेहान के रिश्तेदार या अजीज़ आ जाते थे और रेहान भी कुछ दिन इनसे इस शादी को पोशीदा रखना चाहता था। अलबत्ता रात को मैं अपने घर चली जाती थी। रेहान ने मुझसे कहा कि मैं शहर के एक बेहतरीन इलाके में प्लाट खरीद कर जल्दी तुम्हारे लिए एक अलहदा कोठी बनवाऊंगा, फिर हम सुकून से वहाँ रहेंगे। 2 माह बाद शहर का चक्कर लगाने जाता था और मुझे कहकर जाता था कि फ़लाँ दिन आ जाऊंगा, और फिर रेहान वाकई इस दिन आ जाता था। मुझे इस पर पूरा भरोसा था। मैं समझती थी कि दुनिया में और सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि रेहान कभी मुझे धोखा दे। हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था कि एक दिन ऐसा आया कि रेहान मुझे कहकर गया, मैं फ़लाँ दिन लौट आऊँगा, और वो ना आया। मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। वो दिन गुजरा, इसके बाद के कई दिन गुजरे, यहाँ तक के हफ्ते महीनों में तब्दील होने लगे और रेहान ना लौटा। मैं गम से निढाल हो गई। मैं खुशहाल घराने की इकलौती लड़की थी। ये नहीं कि मुझे माँ बाप के घर में किसी शय की कमी थी, लेकिन रेहान की मोहब्बत और उसकी जुदाई मेरे दिल में घाव डाल रही थी। 6 माह गुजर गए। गर्मियों के दिन गुजर चुके, सर्दियाँ आ गईं, लेकिन मैंने वो खिड़की बंद न की जिसमें से झांक कर मैं रेहान की रात देखा करती थी। रेहान जिस रास्ते से आता था, ये खिड़की उसी रास्ते पे खुलती थी। हर रोज़ यही सोचती कि आज वो ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा ना हुआ था कि जिस दिन का वो बता कर गया हो, इस
वक्त मुकर्रर पर लौट कर ना आया हो। मगर हर रोज़ उम्मीद का सूरज डूब जाता, फिर मायूसी का अंधेरा रात के अंधेरे में घुल मिल कर मेरी रूह में उतरने लगता। मैं खिड़की में सर को टिकाए थक जाती और दूर दूर तक इसका नामो निशान ना होता। हर रोज़ दिल को इस ख्याल से बहलाती थी, हो सकता है इसको ज़रूरी काम पड़ गया हो। जाते हुए इसने मेरा हाथ थाम कर कहा था कि मेरी जान, परेशान ना होना, इस बार मैं अपने वालिदैन को मनाने की कोशिश करूँगा। इनको तुम्हारे बारे में बताऊँगा ताकि वो तुम्हारी हैसियत को तस्लीम कर लें। फिर मैं तुमको घर ले जाऊँगा क्योंकि मेरे भाई की शादी होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस घर में बड़ी बहू की हैसियत से शामिल हो सको। इसने मुझको अलविदा कहते हुए कहा था कि गुलनाब, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। मैंने दुनिया में सिर्फ तुमको प्यार किया है और शादी भी तुमसे ही की है। तुम्हारे सिवा किसी औरत को कभी अपना ना बनाऊँगा। वक़्त गुजरता रहा, फिर पता चला कि रेहान के मकान में एक नया मालिक आ गया है। बाग का सारा अमला भी बदल गया। अब्बा जान ने आकर बताया, रेहान ने बाग, मकान और ज़मीन का सौदा कर दिया है और अब यहाँ पर नया मालिक आ गया है। मैं रोने लगी तो अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और मेरी वालदा को बुरा भला कहने लगे कि इसीलिए मैं कहता था कि अकेले लड़के को लड़की का रिश्ता ना देना चाहिए, क्योंकि फिर इन हालात में लड़की वाले ही बेबस होकर रह जाते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। अगर इसके ख़ानदान वाले इस शादी में शामिल होते तो आज हम जाकर इन्हें पकड़ सकते थे। हमारे यहाँ एक लड़की की शादी एक लड़के से नहीं होती, बल्कि एक ख़ानदान की दूसरे ख़ानदान से होती है। अम्मी सर झुकाए बैठी थीं। वो अब क्या जवाब देती? इन्होंने मेरी खुशी का ख्याल किया था। वो क्या जानती थीं कि रेहान, जो इनकी भी इतनी इज्जत करता था, कि इस तरह धोखा दे जाएगा। बहरहाल किसी न किसी तरह अब्बा जान ने अपने आदमी को रेहान के गांव भेजा। इसने आकर बताया कि रेहान की हाल ही में इसके वालिद ने अपनी भतीजी से शादी कर दी है और वो अपनी दुल्हन को लेकर अमेरिका चला गया है। ये खबर सुनकर मैं बिछाड़ खाकर गिर पड़ी। ऐसा लगता था किसी ने मेरे कानों में गरम गरम सीसा उंडेल दिया है। मेरा दिल बंद होने लगा। माँ ने सहारा दिया और बाप ने समझाया, मगर दिल किसी के समझाने की चीज़ तो नहीं। उम्र गुजर गई, इसको समझाते समझाते आज तक अपनी हैयत को नहीं भुला सका। हालांकि इस बात को अब 16 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी खिड़की खुली है और मैं रोज़ ही इसमें से झांककर अपने मन चाहे महबूब का इंतज़ार करती हूँ। शायद कभी इसको मेरा ख्याल आ जाए और वो लौट आए।